Jai Hind everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the excretory system, and in that we have gone through the kidney, the urethra, ureter and the whole excretory system. In today's video we are going to discuss about the nervous system. So let us start with your chapter. So students, now the topic of the day is nervous system. What do you do when you accidentally touch a hot object? You pull away your hand quickly from the hot object. Similarly, when something falls in your eyes, you blink your eyes. All the living organisms, both plant and animal, respond to their environment by reacting to any sudden change called stimulus. Yes, if some accident or any type of accident is happened with you, what you do, your nervous system help you to cope up, to help to be aware of the accident which is going to happen. What happened, अगर कोई गरम बर्तन है और उसको गलती से आपने टच कर दिया तो तुरंत आप अपने हाथ को दूर हटा लेते हैं. It is just because of the nervous system present in your body. Similarly, when something falls in your eyes, कभी कभी क्या होता है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं या कहीं भी आप हैं और आपकी आँख में गलती से कोई तिनका कुछ चला गया है, तो आप क्या करते हैं, अपनी आँखों को कुछ फास्ट ब्लिंक करते हैं, जिससे जो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए. All the living organisms, both plants and animals, respond to their environment by reacting to any sudden change called stimulus. All the living organisms which are present on this earth, either it is plant or it is animal, they respond to their environment. What happened? If there is any type of accident, if there is any type of fright is there, what everyone does, they usually react to that particular thing, to that particular object, to that particular environment. This is called stimulus. होता क्या है, कभी भी कोई तवा है, गरम तवा है और गलती से आप रोटियां सेक रहे हैं और आपका हाथ लग जा रहा है, तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं. बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो आपने तुरंत हाथ को हटाया, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलस. ये किस लिए, किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ स्टिमुलस. It is the nervous system that coordinate and control our action and reaction to our surrounding. In other words, we can say that nervous system is the control system of our action and reaction to the surrounding. What happened? This is the nervous system which is present in your body. What it does, it controls, it coordinates our action. It usually controls our action and it also controls our reaction. It controls our actions and reaction to our surrounding. In other words, we can say that nervous system is control system of our action and reaction to the surrounding. This nervous system is a control system. It is a controlling system which usually controls our actions and our reactions to the surrounding. If you are seeing this diagram, you can see that the upper portion is brain, then after the middle long स्ट्रक्चर इज स्पाइनल कॉर्ड. ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों म्यूचुअली काम करते हैं. और आप देख रहे हैं हाथों में, पैरों में पतली पतली रेड कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं, दे आर नर्व्स. ये हैं नर्व्स. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाने के बाद हम कहते हैं दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारे बॉडी के सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है. अगर आपको कोई एक झापड़ ऐसे मार रहा हो तो आप ऐसे करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम आपके सारे रिएक्शन और आपके सारे एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं. नाउ द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. If we discuss about the part of nervous system, our nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. These three things constitute the nervous system. If you are discussing about the central nervous system, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं. ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड और उससे एसोसिएटेड नर्व्स होती है. ओके, इफ यू विल सी द
द ब्रेन इज कंसीडर्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो ब्रेन होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्रेन को। ब्रेन के 3 जोन होते हैं, सेरेब्रम जो आप अपर पोर्शन में देख रहे हैं, देन सेरेबेलम जो आप नीचे के पोर्शन में देख रहे हैं, और सबसे नीचे आप देख रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो हमारा ब्रेन है इसमें 3 पार्ट होते हैं। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है। It is located inside the hard body skull that prevent it from external shock and injury. जो हमारा ब्रेन है आपको जो दिख रहा है, इट इज कवर्ड बाय हार्ड बोन, एक हार्ड कठोर कह सकते हो, हार्ड बोन से ये ढका हुआ होता है जिसको हम स्कल कहते हैं, दैट इज खोपड़ी। आप कहते हैं दिस इज खोपड़ी। ये आप देख रहे हैं जो आपको दिख रहा होगा, मैंने टच किया हुआ मेरा सर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है, अंदर ब्रेन है, अंदर आपके ब्रेन है, और ये जो ऊपर से हड्डी का स्ट्रक्चर बना है दैट इज स्कल। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, तो ये जो स्कल है ये क्या करता है, ये आपको एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल इंजरी, इन सब से ये आपको प्रिवेंट करता है। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट। ये जो ब्रेन होता है, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसकी होती है, बहुत ही ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो होता है। और जो ब्रेन होता है इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो इनके 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 इसके बेसिक पार्ट्स हैं, और हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इफ वी विल डिस्कस अबाउट द सेरेब्रम, the cerebrum is the largest part of brain. This cerebrum is the largest part of brain। जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ऊपर के साइड, तो वो सेरेब्रम है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इट रिसीव्स मैसेज और सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड द एक्शन बेस्ड ऑन द सिग्नल्स। कमेंट में जरूर लिखेंगे कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके बॉडी में, 5, और उन 5 का नाम कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। तो जो सेरेब्रम है ये क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। जैसे कि आपकी स्किन है, आपकी स्किन पे चुभ गया कुछ, तो क्या होता है, ये यहाँ से मैसेज जाता है सीधा दिमाग में। तो ये जो दिमाग में जहाँ जा रहा है वो उस पार्ट को हम सेरेब्रम कहते हैं। ओके, सो दिस इज सेरेब्रम। यहाँ से पिन यहाँ से हुई है, यहाँ पे पिंच हुआ है, यहाँ पे चिंगोटी काटी गई है, और यहाँ से चिंगोटी काटी गई है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से ये मैसेज पूरी तरीके से दिमाग में आया, जिस पार्ट में आया दैट इज सेरेब्रम। ठीक, तो सेरेब्रम होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फंक्शन सच एज मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच, थिंकिंग, विजन और साइट, टच, हियरिंग। होता क्या है, जो इसका फंक्शन है ये क्या करता है, अगर याददाश्त की बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी पुरानी चीज़ अगर है तो वो याददाश्त वाला काम करेगा। सेकेंड कंडीशन इज मेमोरी, मेमोरी, हाँ बिल्कुल याददाश्त की बात करेंगे। इंटेलिजेंस, जैसे मान लिया मैंने आपसे पूछा सेंस ऑर्गन कौन है, कौन फटाफट आंसर दे रहा है, मतलब वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं आपको आंसर बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं फटाफट मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेमोरी याददाश्त के लिए, इंटेलिजेंस की मतलब तेज बुद्धि है, फटाफट कौन आंसर दे रहा है, दैट इज इंटेलिजेंस। स्पीच, बार बार मुझे क्या बोलना है, मेरे दिमाग में चीज़ें आते जा रही है, मेरे मुंह से चीज़ें निकलती जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्पीच। थिंकिंग, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, जैसे मैं आंखों से आपका ये PDF देख रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ विजन और साइट। टच, टच करके, एंड हियरिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ आप ईयरफोन या ऐसे ही स्पीकर पे करके आप सुन रहे हैं, दिस इज हियरिंग। तो ये क्या करता है, इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ मोर टू नो, व्हेन द लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज डैमेज, अगर दिमाग का बायां भाग, दिस इज लेफ्ट पार्ट इज डैमेज, द राइट साइड ऑफ द बॉडी गेट पैरालाइज्ड और बिकम डिसफंक्शनल। अगर ये जो खोपड़ी है मेरी, तो अगर हम ये बीच से यहाँ से कर रहे हैं तो इधर का भाग जो है दैट इज लेफ्ट, तो ये जो लेफ्ट का पार्ट है अगर यहाँ डैमेज हो जाए, यहाँ चोट लग जाए, तो मेरे राइट का जो पोर्शन है, दाहिना पोर्शन है, ये पैरालाइज हो जाएगा, ये अपंग हो जाएगा। ठीक, पैरालाइज हो जाएगा मतलब उसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक,
Now the second part of brain is cerebellum. Cerebellum is the part located just below the cerebrum toward the back of the head. The word cerebellum is derived from the Latin word that means little brain. ये जो cerebellum है इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं cerebellum कहाँ है, पीछे के साइड है. तो ये जो cerebellum है ये छोटा होता है इन कंपैरिजन टू cerebrum और ये जस्ट बिलो बैक, नेक के बैक में यहाँ पर पाया जाता है. कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो इस साइड, इस जगह पे. इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है. जो सेरेबलम वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन. ठीक, ये बैक पे पाया जाता है सबसे बड़ी बात, और ये इन कंपैरिजन टू सेरेब्रम ये छोटा होता है. ठीक, इसका फंक्शन क्या क्या है? इट ऑल्सो फंक्शन इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड बॉडी पॉस्चर एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी. ये क्या करता है? मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को. यहाँ से ये क्या करेगा? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा. बॉडी के पॉस्चर को, मतलब सीधा खड़ा रहना इस तरीके से, तो बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करता है. और जितनी भी बॉडी में मसल्स होती हैं उन सभी मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. उन सभी मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग ऑफ द बॉडी. अगर कोई भी वॉलेंट्री एक्शन है, मैंने बार बार बताया वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार. जैसे मैं इस हाथ को अभी इस तरीके से कर रही हूँ, दिस इज वॉलेंट्री एक्शन. तो जितने भी इच्छा के अनुसार मूवमेंट होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, कुछ जो मैं मूव कर रही हूँ, या साइकिल चलाना या पैदल चलना या कुछ भी मूवमेंट करना, ये सारी एक्टिविटी को भी सेरेबलम कंट्रोल करता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं. मतलब जो ब्रेन है उसकी स्टेम किस तरह, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसका जो स्टेम होता है, तना होती है जो उसको होल्ड करके रखती है, उसी तरीके से मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन को होल्ड करता है. इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरेबलम. ये कहाँ होता है? सेरेबलम के जस्ट नीचे होता है. अगर आप डायग्राम को देखेंगे आप देख सकते हैं सेरेब्रम सबसे ऊपर, फिर इस सेरेबलम और सबसे नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या कर रहा है? इन सबको बांध करके रख रहा है. ये सेरेबलम के जस्ट नीचे पाया जाता है. अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन क्या है? दे आर इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा. जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो एक्शन नहीं होते हैं, उन एक्शंस को, जैसे ब्रीदिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, हार्ट बीट हुआ, आप इसको रोक नहीं सकते हो. ब्लड प्रेशर, जो नसों में ब्लड जा रही है उसका प्रेशर, इन सब चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? कंट्रोल करता है. जैसे फूड को खाना आप देख रहे हो, आपके मुंह में सलाइवा आ जा रहा है, लार आ जा रहा है आपके मुंह में, तो दिस इज बिकॉज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा. इसके पीछे कोई और नहीं रिस्पॉन्सिबल है. हार्ट बीट चलनी है, मेडुला ऑब्लोंगाटा. ब्रीदिंग होनी है, सांस लेना है, छोड़ना है, दिस इज बिकॉज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा. अगर बात करें ब्लड का, प्रेशर का, तो वो सारी चीज़ें भी मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंट्रोल करता है. तो आज की क्लास में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन था उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ब्रेन के 3 जोन पढ़े, सेरेब्रम, सेरेबलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. So that's all for today guys. Revise all the videos of this chapter. That's all for today. Thank you everyone.